السلام علیکم ایوری کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول میرا گینگسٹر کیسا لگ رہا ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پلیز 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 پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آج شام قنوہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو وہ قنوہ کو پہلے بھی پسند کرتے تھے، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی۔ قنوہ چائے لے کر آئی تو آنٹی رخسانہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آؤ بیٹا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ حیات لالا، مجھے تو آپ کی بیٹی پہلے ہی پسند ہے، اور میرا احمد تو پہلے ہی کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف قنوہ سے، بس اپنے بچے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ انکار نہیں کہیں گے۔ جی بہن جی، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمد ہر لحاظ سے بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے تو پہلے ہی احمد بہت پسند تھا، اب تو اور بھی عزیز ہو گیا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ قنوہ کی شادی ذرا جلدی کر دوں، بابا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، احمد جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابان کہیں نظر نہیں آ رہی۔ رخسانہ آنٹی نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ ہمارے کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہے، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، بابا نے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس جمعہ کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کیونکہ احمد چاہتا تھا کہ اب اسلام آباد جاتے ہوئے وہ قنوہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ماشاءاللہ اسلام آباد میں اس نے اپنا فلیٹ لے لیا ہے، اب تو کمپنی نے اسے اپنی گاڑی بھی دے دی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیگم نے قنوہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ احمد بہت قابل، ٹھیک ہے بہت قابل ہے، ٹھیک ہے اب نکاح پر ہی ملاقات ہوگی۔ آپ جلدی شادی چاہتے ہیں اور ہم بھی، بس اب میں اپنی قنوہ کو بہو بنا کے لے جانے آؤں گی۔ حیات لالا نے خوشی خوشی مہمانوں کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کے نصیب کی دعائیں مانگنے لگے۔ رات جب شاہ کمرے میں آیا تو ابان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ارے تم سو گئی کیا؟ شاہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ نہیں میں جاگتی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ شاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، اس کی پرنسس کتنی اچھی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ابان کو کچھ نہیں کہے گا، اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور ایک خوبصورت زندگی جیے گا۔ ہاں یار میں شرٹ نہیں اتار پا رہا، پلیز میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں کرتی ہوں۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ شاہ کے بالکل قریب تھی، شاہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کی سانسیں وہ شاہ کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں شاہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جتنی جلد بازی دکھائی اتنی ہی شرمندگی ہوئی۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ابھی اس نے بٹن کھولے تھے جب اپنی کمر پر شاہ کا ہاتھ محسوس کیا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اس نے شاہ کا کمر پر رینگتا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا، پھر اس کے بٹن کھولے، پھر اس کے پیچھے جا کر شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے اس طرح سے مزاحمت کرنے پر شاہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ نہا نہیں سکتے، اس لیے شرٹ بدلیں اور سو جائیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ روز سونے سے پہلے نہاتا ضرور تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی ہدایت بتانا ضروری سمجھی۔ اور کوئی حکم؟ شاہ نے سر جھکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر پوچھا۔ جی ہے، آپ نے ایک اور میڈیسن کھانی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ساری میڈیسن تو یہیں رکھی ہیں، شاہ نے بتایا۔ ہاں میڈیسن یہاں رکھی ہیں، لیکن دودھ تو نیچے کچن میں ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلے گئے، جبکہ دودھ کا نام سن کر شاہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ حد ہے، یہ بات پر دودھ کون پیتا ہے؟ بس اب اور نہیں پی سکتا میں، شاہ نے فیصلہ کیا جب ابان دودھ لے کر اندر آ گئی۔ یہ پکڑے، اس نے دودھ کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے کہا، جو شاہ نے خاموشی سے پکڑ لیا، کیونکہ اس نے صرف پکڑنا تھا، پینا تھوڑی تھا۔ ابان نے میڈیسن نکالی اور اس کے منہ کے قریب لے گئی، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی، اس پر چوٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ شاہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ منہ کھولے نا۔ شاہ نے بنا چو چرا کیے منہ کھولا۔ ابان نے گولی اسے کھلا دی۔ ارے دودھ سے نکلے نا۔ ابان نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے گلاس منہ کے قریب کیا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے پر شاہ نے منہ بنایا۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے، ابان اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہونے کا تو پتا نہیں، ہاں یہ دودھ روز پی کر میں بچہ ضرور بن جاؤں گا، شاہ نے سوچا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگر رات کو آپ کو درد ہوا یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے جگا لیجیے گا، ابان نے سونے سے پہلے ہدایت دی۔ کافی دیر اس کے سونے کا انتظار کرتے ہوئے لیٹی رہی، لیکن اس کے سونے سے پہلے ہی وہ سو گئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب شاہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ابان کی آنکھ کھلی تو دیکھا شاہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب ابان کی نظر اس کے ہاتھ میں بندھی گیلی پٹی پر پڑی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں نہائے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، ابان نے اسے کھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جان پہلے گڈ مارننگ تو بول دو، شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ آپ کیوں نہائے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرائی، لیکن جب پلٹ کر واپس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا پھر سے پوچھنے لگی، کیونکہ مجھے آفس جانا ہے پرنسس، اور بغیر نہائے تو میں کمرے سے بھی نہ نکلوں، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اب مزید بحث کرنا بیکار تھا، نہا تو ویسے بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر اسے گھورنے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں جانے لگی جب وہ پیچھے سے آواز آئی، جان آج وائٹ ڈریس پہنا۔ اس نے شاہ کی طرف دیکھا جس نے بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکر ہے آج اس کی بلیک سے تو جان چھوٹی، وہ جی کہتی چلی گئی۔
रादिया, तुम अबान का ख्याल रखना, वो फोन पर किसी से भी बात ना करे और ना ही उसे यहाँ से निकलने देना, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हमजा उसे समझाया जा रहा था, लेकिन रादिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह भाई अबान को इस तरह से कैद क्यों रख रहे हैं, आखिर बात क्या है। हमजा, आप लोग अबान को फोन पर तो ना किसी से बात करने देते हैं और ना ही उसे कहीं बाहर जाने देते हैं। शाह भाई उसके साथ काफी सख्त हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उससे प्यार भी बहुत करते हैं, तो फिर इस पर इतनी सख्ती क्यों, इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं। रादिया से ना रहा गया तो पूछने लगी, क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर है रादिया, हमें उसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखना है, हमें उसे खुश रखना होगा। शाह नहीं चाहता कि वो आगे पीछे किसी से भी मिले या परेशान हो, हम कुछ दिन में ही वापस चले जाएंगे, फिर वहां जाकर उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। हमजा ने बताया, इसका मतलब अबान बीमार है? रादिया ने परेशान होकर पूछा। नहीं रादिया, वो बीमार नहीं है, बस हम लोगों के मुकाबले में उसका दिल थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम उसका इलाज करवाएंगे, तब तक उसे कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? फिक्र न करे, मैं उसका ख्याल रखूंगी, रादिया ने यकीन दिलाते हुए कहा। वो ऑफिस में बैठा था जब पियून ने आकर बताया कि उससे मिलने कोई बूढ़ा आदमी आया है। उसने शीशे की दीवार से पीछे देखा, जिससे अंदर बैठा कोई भी शख्स बाहर से सब कुछ देख सकता था, लेकिन बाहर बैठा शख्स अंदर का हाल नहीं जान सकता था। बाहर हयात लाला की वेटिंग चेयर पर बैठे देखकर उसके माथे की रगें बाहर आने लगी। उसका दिल किया अभी जाए और उसे जान से मार दे, लेकिन फिर वहीं बैठा रहा, उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर उसके सामने से निकलकर अपनी मीटिंग में चला गया। लाला उसे बुलाता रहा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज किए आगे बढ़ गया। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे बाद खत्म हुई। जब वापस आया तो लाला अब भी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था ये यकीनन उसकी मिन्नतें करने आया था, वो यकीनन उसकी अबान को उससे दूर करना चाहता था। तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया लाला, मेरी माँ छीन ली, मेरी आने के साथ उससे आगे तो वो सोच भी नहीं पाया। बस नजरअंदाज करता एक बार फिर से अपने ऑफिस में चला गया। लाला से पुकारता रहा, लेकिन शाह ने उससे ना सुनने का फैसला कर लिया था। वो वापस अपने ऑफिस में आया। लंच का टाइम हो चुका था। उसने सुकून से खाना खाया, फिर अमान की खैरियत मालूम करने के लिए घर फोन किया, लेकिन आराध्या ने बताया कि वो सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। आराध्या ने बताया कि वो सुबह 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है उसके कमरे की, लेकिन वो कमरा ही नहीं खो रही। आराध्या ने सोचा कि शायद वो सो रही होगी। खैर ये तो वो भी जानता था कि उसके मंजिल से हटते वो अपने बाप और बहन का सूख मनाने लगती है। उसका ख्याल रखने को कहकर उसने फोन बंद कर दिया। शाह के कमरे में ऐसी कोई जगह न थी जहां से वो भाग सकती, इसलिए उसे कोई टेंशन न थी, और वैसे भी कल वाले वाकये के बाद वो भागने का सोचेगी भी नहीं, उसको यकीन था। फिर उसकी दूसरी मीटिंग का वक्त हो गया, जिसमें तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे लग चुके थे। उसने वापस जाकर देखा तो लाला अब भी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। 5 बजे के करीब उस पर दस्त खाकर अपने कमरे में बुलाया। आओ लाला बैठो, बताओ क्या कहने आए हो। शाह उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने आया हूँ शाह, मैं तुमसे अपनी बेटी की आजादी की भीख मांगने आया हूँ। खान लाला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वापस चले जाओ लाला, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। देखो शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरी बेटी को मेरे किए की सजा मत दो। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, जो सजा है मुझे दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लगता है तुमने सुना नहीं लाला, मैंने कहा आज तुम मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं दे सकता। शाह ने सख्त लहजे में कहा। देखो शाह, मेरी बात सुनो, लाला ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। लाला, मैंने तुमसे कहा तुम जा सकते हो। शाह ने हाथ उठाकर उसे चुप कराते हुए कहते हुए और फोन उठाया। गार्ड को भेजो, यहाँ एक पागल आदमी घुसा है, निकालो इसे यहाँ से बाहर। नहीं शाह, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी को बख्श दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची मासूम है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने जो भी कहना है मुझे कहो, मुझसे बदला लो। उसकी हालत पर शाह ने जोरदार कहका लगाया। तुम्ही से तो बदला ले रहा हूं लाला। तभी गार्ड तेजी से अंदर दाखिल हुए और लाला को पकड़कर बाहर घसीटने लगे। शाह, खुदा का वास्ता है मेरी बच्ची को छोड़ दो, लाला चिल्लाया, जिस पर शाह ने एक और कहका लगाया। लाला को बेइज्जत करने के बाद उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। आज उसने अपनी पहली कामयाबी मनाई थी। वो लाला को इतना जलील करना चाहता था कि वो अपनी ही मौत की दुआएं मांगे। अभी उसने अपना अगला कदम उठाने का फैसला किया था। लाला ने उसके ऑफिस में आकर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। आज वो बहुत खुश था और अपनी खुशी अपनी प्रिंसेस के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। मगर उसकी प्रिंसेस तो खुद को नजर बंद किए कमरे में बैठी थी। वो सुबह से न जाने कितनी बार आराध्या को फोन करके पूछ चुका था, मगर उसने हर बार यही कहा कि उसका दरवाजा अंदर से बंद है और वो कोई जवाब नहीं दे रही। और वैसे ही अब्बा ने कौन सा अपने बाप की बेइज्जती सेलिब्रेट करनी थी। तभी हमजा कमरे में आया। सुबह वाला प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, उस पर भी काम हम कराची में जाकर शुरू करेंगे। प्लीज जल्दी से अपना सिस्टम यहाँ समेटो ताकि हम वापस जाएं। वहां पर भी कितने काम पेंडेंट पड़े हैं। लाला की बेटी उठाकर मैंने उस पर पहला वार किया था और उससे निकाह करके दूसरा। आज उसे बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया। जब तक उसे मौत की दुआएं मांगते न देखूं मैं तब तक यहाँ से नहीं जाना चाहता।
उसने हमजा को देखकर कुछ बावर करवाने की कोशिश की। शाह, क्या तू नहीं जानता ये सब कुछ करके आबान को तकलीफ होगी, और आबान की तकलीफ क्या तेरी तकलीफ नहीं? हमजा चाहता था कि शाह ये सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करे। देख शाह, मैं जानता हूँ तो वह आबान से बहुत प्यार करता है। क्या तू आबान की खुशी के लिए लाला को इग्नोर नहीं कर सकता? तो ये नहीं बोल सकता कि तेरी लाइफ में कभी लाला आया था, या तो दोबारा कभी लाला से मिला? तो बचपन से उसे ढूंढ रहा है ना, तो यही सोच के वो तुझे कभी मिला ही नहीं, तुझे जानता ही नहीं। हमजा ने बात करते हुए एक नजर शाह की तरफ देखा, जो सिर्फ आंखें लिए उसे घूर रहा था, लेकिन हमजा बाज ना आया। क्या तू अबान के लिए उसे बख्श नहीं सकता? मैं अबान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ हमजा, अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क़यामत के दिन मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बताऊंगा कि मैंने अपनी आने की इज्जत के लुटेरे को माफ कर दिया? मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ हमजा। जब तक लाला मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपना दम नहीं तोड़ देता, तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा, और अबान उसे कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी। ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने साथ मेरी दुनिया में, जहां सिर्फ शाहजर और अबान होंगे। छोड़ो अब इन बातों को, आज मैं बहुत खुश हूँ, चल मेरे साथ मेरी खुशी सेलिब्रेट कर, शाह ने उससे मौजू से हटाते हुए कहा। हमजा को भी अब बहस बेकार लगी। वैसे मेरा इरादा आज अबान के साथ सेलिब्रेट करने का था, शाह ने शरारत से कहा। वाह बेटा, क्यों नहीं? जाना अबान के पास, कल जो हालत की थी ना तेरी, दूध पिला पिला कर आज उससे भी बुरी हालत करेगी, ये जान करके उसके बाप को जलील करने की खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ तो इसलिए उसके साथ नहीं कर रहा, तेरे साथ कर रहा हूँ, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। तो हमजा भी मुस्कुराया। मेरी भाभी से डरता है तू? हमजा ने शरारत से कहा, तो शाह ने कहका लगाकर हंसा। 1 महीना गुजर चुका था शामिर को गए हुए, लेकिन ना तो उसका फोन आया और ना ही उसकी कोई खबर थी। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। शाहजर के स्कूल की फीस सर पर थी, घर का किराया। आमना को अब टेंशन होने लगी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास शामिर के घर का नंबर नहीं था। मकान मालिक 2 बार आ चुका था। शाह के टीचर ने उसकी कॉपी पर नोट लिखकर भेजा था कि उसकी फीस जमा कराएं। घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया था, और ऊपर से शाहजर बाप से दूर हो जाने की वजह से काफी बीमार हो गया। मामा बाबा कब आएंगे? अगर वो नहीं आते तो हम उनके पास चले जाते हैं। शाहजर ने हर रोज की कही हुई बात फिर से कही। उसे तो तीसरे ही दिन अपने बाप की याद सताने लगी थी। अल्लाह खैर करे बेटा, बाबा वापस आने वाले ही होंगे और आप जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना बाबा क्या कहेंगे कि मामा ने आपका ख्याल नहीं रखा। आमना ने शाहजर को समझाते हुए कहा। मामा, मैं बाबा को बहुत मिस कर रहा हूँ। बाप का नाम लेते हुए शाहजर की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी, उसे अपने सीने से लगाया, आमना ने धीरे से कहा। जब दरवाजा बजा, आमना ने दरवाजा खोला तो बिजली का बिल आया था। पहले टेंशन खत्म नहीं हो रही थी, एक और टेंशन आ गई। उसे यहाँ 1 महीना गुजर चुका था। शामिर का बाप पहले से काफी बेहतर था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे आमना से बात करने से मना कर दिया। लेकिन अम्मा भी, मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका है, आपने सोचा भी है मेरे घर की क्या हालत होगी? शाहजर मुझे कितना मिस कर रहा होगा, और आमना वो अकेले शाहजर को कैसे संभाल सकती है? नहीं संभाल सकती, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहजर को मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। उसने अम्मा भी को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। तुम बाद में आमना से बात कर लेना। अम्मा भी ने उसके गुस्से को देखकर मजीद बहस करना बेकार समझा। वो भी ठीक कहता है। बाबा के कमरे में आ गया, क्योंकि उसे आमना के पास वापस जाना था, अपने बेटे के पास, जो इतना जिद्दी था कि शामिर के अलावा किसी की बात नहीं सुनता था। ना जाने आमना ने 1 महीना उसे कैसे संभाला होगा। जी बाबा, आपने बुलाया? शामिर उनके करीब बैठते हुए बोला। हयात, बाबा ने अपने नौकर को आवाज देते हुए कहा। जी साईं बोले। हयात लाला भागते हुए आया। जाओ कुरान पाक लेकर आओ। बाबा ने उसे हुक्म दिया तो वो जी साईं कहता वहां से निकल गया। बाबा, आप कुरान पाक क्यों मंगवा रहे हैं? उसे लगा शायद वो दिली सुकून के लिए उससे कुरान पाक सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मेरी बात मानोगे। बाबा की बात सुनकर उसके पैरों से जमीन निकल गई। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई इतनी बड़ी बात है कि आप मुझसे कसम लेंगे, वो भी कुरान पाक की जैसी मुकद्दस किताब की? शामिर ने परेशान होकर कहा। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें कसम खानी होगी। बाबा, मैं आपकी कसम खाता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझसे ये गुनाह ना करवाएं। आपको पता है कसम खाना कितना गलत है, वो भी कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब की। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, शामिर ने माजरत से कहा। तभी हयात लाला कुरान पाक लेकर हाजिर हुआ। बाबा, मैं आपकी कसम खाता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, इस किताब को वापस रखवाएं। उसकी बात सुनकर बाबा ने हयात लाला को जाने का इशारा किया। वो कुरान पाक लेकर वापस चला गया। ठीक है, तुमने हमारी कसम खाई है कि तुम हमारी बात मानोगे। तुम इस बात को भी मानते हो ना? बाबा ने पूछा। जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं आपकी कसम खाता हूँ, शामिर पुरसकून होकर बोला। उसने कुरान पाक की कसम ना लेते हुए अपने आप को पुरसकून महसूस किया। वो जानता था कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता, कितनी मुकद्दस किताब की कसम खाई। उसका बाप उससे कुछ भी करवा सकता था, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। बात अगर कुरान पाक की आई तो वो जरूर कोई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसे कुरान पाक की अहमियत का अंदाजा था।
अपने बाप की कसम खाना बेहतर समझा, लेकिन सच तो ये था कि वो अपने बाप की कसम भी नहीं तोड़ सकता था। बताइए मुझे क्या करना है, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, शामी ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। ठीक है, तो आज के बाद आमना तुम पर हराम है। अगर उसे कभी देखा तो अपनी नजरें फेर लोगे। तुम उसे तलाक दो या ना दो, लेकिन दूसरी शादी जरूर करोगे। तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद तुम आमना की शक्ल भी नहीं देखोगे। बाबा ने जैसे उसके सर पर आसमान ला गिराया था। ये क्या कह रहे हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप उसके कुरान पाक की कसम लेकर ये करवाने वाला था। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी नजरों में तुम्हारे बाप की कोई भी अहमियत है तो उसके बाद आमना तुम पर हराम है। तुम्हारा उसको देखना हराम है, तुम्हारा उसको छूना हराम है, तुम्हारा उसके बारे में सोचना हराम है, उसके बारे में बात करना हराम है। क्या कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान पर कोई तीसरे इंसान को हराम कर सकता है? लेकिन उसके बाप ने किया था, अपनी कसम देकर। या खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे कुरान की कसम नहीं लेने दी। वो अपने बाप की दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि उसने कहा था कि वो आमना के बारे में सोच भी नहीं सकता, और शामिर जानता था कि ये नामुमकिन है। उसके बाप ने उसकी सोचे तक हराम कर दी। बिना कोई सवाल पूछे, बिना कुछ कहे वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया और सजदे में झुककर न जाने कितने घंटे रोता रहा। खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उससे इतना बड़ा गुनाह करने से रोक लिया, लेकिन आमना से दूर, अपने बच्चे से दूर होने की सजा वो जिंदगी भर भुगतने वाला था। उसे अपने बाप से नफरत हो चुकी थी, उससे तो अपनी जिंदगी से भी नफरत हो चुकी थी। आराध्या खाना बना रही थी, जब उसे अपने पीछे किसी आहट महसूस हुई। वो मुस्कुरा दी, पीछे मुड़कर देखा तो अबान खड़ी थी। क्या हुआ, भूख लग रही है? उसने मोहब्बत से पूछा तो अबान ने हाँ में सर हिलाया। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाना निकाल कर देती हूँ, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अबान फौरन बैठ गई। उसे बहुत भूख लगी हुई थी, ना तो उसने सुबह से नाश्ता किया था और ना ही सुबह से कुछ खाया था। शाह उसे कमरे में छोड़कर गया था, वो अपने कमरे से बाहर भी ना निकली थी। आराध्या ये जाने कितनी बार इस कमरे तक आई थी। आराध्या ने उसके सामने खाना रखा तो वो खाने लगी। अरे ये तो बहुत मजे का है, बान खुश होकर कहा, क्योंकि इतने दिन से वो कुक के हाथ का खाना खा रही थी, जो उसे बहुत बेजायका और बेसवाद लग रहा था। आराध्या मुस्कुरा दी। तुम्हें अच्छा लगा? तो लो ना, उसकी प्लेट में और खाना निकालते हुए कहा। थैंक यू, अबान धीरे से बोली। मोस्ट वेलकम। आराध्या ने मोहब्बत से उसके गाल को छूकर कहा। तुम मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। शाहबाई और हमजा का आगे पीछे कोई नहीं है। कराची जाने के बाद मैं रोज तुमसे मिलने आया जाया करूंगी। आराध्या ने मोहब्बत से कहा। आप कराची से कैसे आएंगे मुझसे मिलने के लिए? रोज अबान ने परेशानी से पूछा। अरे हमारे घर ज्यादा दूर नहीं है, हम आसानी से रोज मिल सकते हैं। आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा। हमारे घर मतलब ये घर नहीं है हमारा? अबान ने पूछा। नहीं, ये भी शाहबाई का ही घर है, लेकिन असल घर तो कराची में है ना, हमें कुछ दिन में वापस जाएंगे। आराध्या ने उसके सर पर धमाका किया। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने पापा के पास। आराध्या की बात सुनते ही अबान को रोना आ गया कि वो किसी के छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोली। अबान, तुमने ये मेरी बात मेरे सामने की है, लेकिन गलती से भी शाहबाई के सामने मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शामत आ जाए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि शाहबाई ने तुम्हें इस तरह से मारा है, और बेहतर होगा कि तुम उनके सामने कुछ इस तरह की बात ना करो। आराध्या ने उसे समझाना चाहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी के साथ। उन्होंने कहा था मेरी सारी बातें मानो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर अब मैं उनकी सारी बातें मान तो रही हूँ, फिर क्यों कह रहे हैं वो मेरे साथ? ऐसा क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे अपने साथ? मुझे कहीं नहीं जाना, आप उनसे बात करें ना। उसने आराध्या के दोनों हाथ पकड़कर उम्मीद से कहा। शाहबाई से मैं क्या बात कर सकती हूँ? उनके सामने तो हमजा कुछ नहीं बोल पाते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर क्यों रखा है आराध्या। तो क्या अब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती क्या? अगर ऐसा है तो मैं भाग जाऊंगी। अबान ने मसले का हल निकाला हुआ था। अबान, तुम उनसे नहीं भाग सकती। तुम नहीं जानती हो कि उनकी पहुंच कहां तक है। उन्हें इस वक्त भी तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर है। शायद वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। राधा ने उसके सर पर एक और धमाका किया। अबान का हलक कड़वा हो चुका था। मजीद एक निवाला भी खाना उसके बस से बाहर था। वो उठकर जाने लगी जब आराध्या का फोन बजा। स्क्रीन पर शाह का नंबर जगमगा रहा था। उसने परेशान होकर फोन उठा लिया। अबान को फोन दो, काफी गुस्से में कहा गया। राधिया ने फौरन फोन किचन से बाहर निकलती अबान की तरफ किया। हेलो, अबान ने उसके फोन लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा। प्रिंसेस, खाना अधूरा नहीं छोटे। शाबाश, खाना खाओ। तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चलो शाबाश। उसे कैसे पता चला कि उसने खाना नहीं खाया? तो क्या राधिया सच कह रही थी कि उसके पल पल की खबर रखता है? अबान सिर्फ जी कहती फोन उसे पकड़ाकर वापस कुर्सी पर बैठ गई थी और बिना चू चरा किए अपना छोड़ा हुआ खाना खाने लगी। उसे खाना खिलाकर मेडिसिन दे देना, शाह ने आराध्या से कहा। जी शाह भाई, आप फिक्र न करें, मैं दे दूंगी। फोन बंद होने के बाद आराध्या फिर से उसके पास आ बैठी, जो किसी छोटे बच्चे की तरह जबरदस्ती खाना खा रही थी। उसे बेसाख्ता उस मासूम सी बच्ची पर तरस आने लगा। शादी हुए 4 महीने गुजर चुके थे। यह वक्त आमना के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था। आए दिन शाहजर की कॉपी पर फीस के लिए कुछ न कुछ लिख कर भेज दिया जाता था। आए दिन मकान मालिक उनकी बेइज्जती करता। घर में खाने का कोई सामान न था। 4 माह से जिससे उधार घर का राशन ले रही थी, उसने भी अब कुछ भी देने से मना कर दिया था।
बाजी पहले अगले पैसे तो दो, फिर और उधार मत आना। शामिर उससे कोई राब्ता ना था। मामा बाबा हमें भूल गए हैं क्या? एक दिन शाहजर ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा, वो हमें भूलने नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। आमना ने अपने साथ उसे लगाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे मामा, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, जिस तरह से आतिफ के बाबा उसे छोड़कर चले गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे, जैसे ही वो प्रॉब्लम हल होगी तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। आमना ने एक और उम्मीद का दिया भी जलाया हुआ था, जबकि शाहजर ने ऐसी कोई उम्मीद ना रखी थी। उसे यकीन था कि उसका बाप उसे छोड़कर जा चुका है, कभी ना वापस आने के लिए। हर रोज नौकरी के लिए धक्के खाती, लेकिन उसे अब तक नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त जब शाह को स्कूल से वापस आने का वक्त हुआ, लेकिन वो वापस ना आया। दोपहर 3 बजे के करीब आमना को टेंशन होने लगी। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, आमना को लगा शाहजर है, इसलिए जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने मोहल्ले का कोई लड़का खड़ा था। आमना बाजी शाहजर को देखे वो क्या कर रहा है। लड़के ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। आमना भी फौरन चादर लेकर लड़के के पीछे गई। वो उसे कहीं किसी जेरे तामीर जगह पर ले आया था, जहां देखा तो शाहजर बड़े बड़े मजदूरों के साथ ईंट और पत्थर उठा रहा था। शाहजर, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें स्कूल भेजा था और तुम यहाँ? उसने अपने मासूम बच्चे के हाथ देखे, जहां पत्थर उठाने की वजह से छाले बन चुके थे। नहीं मामा, मैं अपनी मामा को मजीद जलील होते नहीं देख सकता। मैंने दुकानदार अंकल का सारा उधार चुका दूंगा, मालिक अंकल को घर का किराया भी दे दूंगा, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर आमना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं रहेंगे यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से, नौकरी करूंगी और तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। आमना ने उसे उम्मीद दिलाते हुए कहा। नहीं मामा, बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें आना होता तो कब के आ चुके होते। शाहजर के लहजे में बाप के लिए गुस्सा आमना साफ महसूस कर रही थी। 4 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद शामीर ने अपने बाप से ना तो बात की थी और ना ही उसके कमरे में गया। उसका बाप अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था, उसकी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा था। शामीर ने खूब हंगामा मचाया। ये सच था कि अपने बाप से क्या वो वादा निभा रहा था, लेकिन दूसरी शादी करना उसके बस में ना था। शामीर, तुमने हमसे वादा किया था तुम तलाक दो ना दो, लेकिन दूसरी शादी जरूर करोगे, और अब तुम अपने वादे से नहीं फिर सकते। नहीं बाबा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ आमना से मोहब्बत की और एक बच्चे का बाप हूँ, दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ठीक है शामीर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक बच्चे के बाप हो, मैं समझ सकता हूँ कि उससे दूर रहकर तुम्हें कैसा लगता होगा। जो दर्द 12 साल से मैं सह रहा हूँ वही तुम भी सह रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ ले आऊं तुम्हारे पास और आमना को तलाक दे दो। बाबा ने उसके सर पर एक और धमाका करते हुए अपनी प्लानिंग बताई। नहीं, कभी नहीं। क्या चाहते हैं आप? आमना से उसको सब कुछ छीन लिया, अब क्या आप उससे उसकी औलाद भी छीनना चाहते हैं? मैं सारी जिंदगी रह लूंगा अपने बेटे के बगैर, लेकिन आमना को उससे अलग नहीं करूंगा। इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता बाबा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह इतना जालिम नहीं हूँ। शाह को कभी भी मैं आपको आमना से दूर नहीं करने दूंगा। नहीं शामीर, वो हमारे खानदान का खून है और हमारे खानदान में रहेगा। मैं उसे ऐसी किसी औरत के साथ नहीं रहने दूंगा जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं। खुदा के लिए बस कर दे बाबा, आप मेरी शादी करना चाहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ शादी करने के, लेकिन खबरदार जो आपने शाह को आमना से अलग किया। शामीर ने जैसे बाप की मिन्नत की थी। देखो शामीर, वो हमारे खानदान का खून है, हमारा पोता है, हमारे साथ रहेगा यहाँ पे। शायद उसका बाप भूल चुका था कि उसी पौधे की पैदाइश पर उसने कहा था कि वो एक ऐसी औरत की वजह से जन्म ले रहा है जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं है। मैं अपना पोता अपनी खानदानी बहू से चाहिए। बाबा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप शाह को आमना से अलग ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या उस औरत के लिए इतना काफी नहीं कि वो अपने शोहर सिर्फ एक हमदर्दी में गवा चुकी है? आमना मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स ना करती तो मैं कभी भी उसे और अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ नहीं आता। वो तो समझ ही नहीं सकती कि उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला गया है। और शामीर अपने बाप के बारे में जानने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं बता पाया। शामीर, हम अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर रहे हैं जीनत के साथ। जब तक तुम इजाजत नहीं दोगे हम अपने पोते को लेकर यहाँ नहीं आएंगे। न जाने बाबा के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि यह शख्स कभी भी अपने पोते को खुद से अलग नहीं करने वाला था। वही पोता जिसके कल तक वो अपना खून मारने के लिए इनकारी था, आज उसे वही पोता अजीज हो चुका था। न जाने शाह रात कब घर वापस आया। बान तो रोते रोते सो गई। रात के तकरीबन 12:30 बजे बिजली कड़कने से उसकी आंख खुली और उसे बारिश और बिजली से डर लगता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शाह बेड पर नहीं था, वो अभी तक नहीं आया था। ये सोचकर अबान को और भी डर लगने लगा। अपनी बेबसी पर उसे रोना आने लगा। जब देहान बालकनी में गया जहाँ कोई खड़ा था, ध्यान से देखा शाह शर्ट के बगैर खड़ा बारिश एंजॉय कर रहा था। डर के मारे अबान किसी पत्ते की तरह थरथरा रही थी। उसे इस मौसम से डर लगता था। फिर कुछ कर उठी और बालकनी में आई। बिना आवाज के उसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन उसे मुखातिब किए बगैर ही पलटने लगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शाह ने बिना पलटे उससे कहा। उसने तो बिल्कुल आवाज नहीं की, तो शाह को कैसे पता चला कि वो उसके पीछे खड़ी है? वो सोचने लगी। फिर आराध्या की बातें याद आई। भाई तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं, ये कोई जिन भूत तो नहीं है जिन्हें सब कुछ ऐसे ही पता चल जाता है? अबान ने दिल में सोचा। मैं यहाँ नहीं हूँ। अबान जल्दी से बोली और पलट कर जाने लगी, जब शाह ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या तुम्हारा भूत खड़ा है? शाह ने मोहब्बत से उसके बिखरे बाल सुलझाते हुए कहा। नहीं भूत
झूठ तो नहीं है, मैं हूँ। अबान समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे, फिर कुछ सोच कर बोली, ऐसे बारिश में नहीं भीगना चाहिए, बारिश में चुड़ैलें जमीन पर उतरती हैं। अबान ने उसे डराना चाहा, जिस पर शाह मुस्कुरा दिया, अगर बारिश में परियां मिलती हैं, चुड़ैलें नहीं। परियां? अबान कुछ कंफ्यूज हुई। हाँ, इसी बारिश में एक दिन मेरी जिंदगी में एक परी आई थी, शाह ने उसका माथा चूमते हुए कहा, जबकि उसकी इंतहाई कुर्बत पर अबान के बारिश में भी पसीने छूट चुके थे। जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आया था उस दिन ऐसी बारिश हो रही थी, और फिर मैंने गाड़ी के बाहर व्हाइट ड्रेस में एक परी देखी और मुझे उस परी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? अबान ने पूछा। हाँ, मोहब्बत। फिर मुझे पता चला कि उस परी को गलत जगह पर भेज दिया गया है, तो मैं उसे उठाकर उसकी सही जगह ले आया, लेकिन वो परी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो वापस उसी गलत जगह जाना चाहती है, लेकिन मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए शाह ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसे अपने अंदर छुपाने लगा। मैंने ठीक कहा ना, किया ना अबान? उसे अपने सीने में भीजे बोसी से पूछ रहा था, जबकि उसकी इंतहाई कुर्बत पर अबान की सांसें रुकने लगी थी, वो उसकी बात तक नहीं सुन पा रही थी। बताओ ना अबान, मैंने उसे सही जगह पहुंचाकर ठीक किया ना? उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर मोहब्बत से पूछने लगा। हाँ, बिल्कुल ठीक किया, अबान ने जान छुड़ाने के लिए जल्दी से कहा। उसकी बात सुनकर शाह मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुकता चला गया, उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत करता उसे एहसास दिलाने लगा कि वो परी सिर्फ उसी की है। मुझे नींद आ रही है, उखड़ती सांसों से बड़ी मुश्किल से लफ्ज अदा किए। शाह मुस्कुराया। तुम तो सारा दिन सोती रही हो, आज इतना सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, शाह ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। नहीं, मुझे सोना है, मेरी तबीयत खराब है ना। शाह से ज्यादा उसे अपने आप को यकीन दिलाया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। शाह उसके मासूम बहानों पर मुस्कुराने लगा। नहीं, मैं बीमार हूँ, देखिए ना। उसने शाह का हाथ अपनी पेशानी पर रखते हुए कहा, जो बिल्कुल ठंडी थी। तुम ठीक नहीं हो जाने शाह, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ कि कराची जाने से पहले तुम अपनी सारी नींदें पूरी कर लो, और इसके बाद जो इतने दिनों से मेरी नींदें हराम कर रखी है उसका हिसाब चुकाना होगा। शाह ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए कहा। आबान अपनी सारी जान लगाकर उसे धक्का देकर उससे दूर हुई, लेकिन शाह को यह बात नागवार गुजरी और अगले ही लम्हे उसे पकड़कर दीवार से लगाया और दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके फरार के रास्ते बंद किए। याद रखना आबान, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, इसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे दूर नहीं जा सकती तुम, इसलिए कोशिश करना भी बंद कर दो। सिर्फ मेरी हो तुम, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें नजर नहीं आता? शाह गुस्से से उस पर धाड़ा। झूठ! उसके गुस्से से डरकर आबान बमुश्किल बोली। अभी तो आपने कहा था कि आप परी से मोहब्बत करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझसे करते हैं। उसकी बात सुनकर शाह का सारा गुस्सा पल में गायब हुआ और कहका लगाकर हंस दिया। तुम मेरी परी से जेलस हो रही हो? शाह ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। मैं क्यों जेलस होंगी? आबान धीरे से मनमनाई। तुम क्यों जेलस होगी? तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, ना ही मेरे पास रहना चाहती हो। शाह को अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कितनी मोहब्बत करता था वो उससे, और वो उसके जज्बात को समझ भी नहीं पा रही थी, और अगर समझ भी जाए तो कौन सा उससे मोहब्बत करनी थी। उसके साथ जुल्म हुआ था, उसको एक अनचाहा हमसफर मिला था, उसके घर वालों से अलग किया गया था। क्या तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करोगी? अपनी सोच को जुटलाकर शाह ने उससे सवाल पूछा। मुझे नींद आ रही है, आबान फिर से बोली। शाह को अपना सवाल इग्नोर किए जाने पर गुस्सा आया। जाओ आराम करो। शाह उसका हाथ छोड़ दिया। आबान चुपचाप बिना पीछे मुड़े बेड पर आई और सर से पांव तक ब्लैंकेट लिए शाह की नजरों से छुप गई। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे आबान? मैं जबरदस्ती करवाऊंगा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। सिर्फ मेरी हो तुम, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए आबान। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ। मैं जानता हूँ तुम लाला को भूल जाओगी, मैं लाला को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सिर्फ शाह होगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में। लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया से छुपा लूंगा प्रिंसेस। मैं तुम्हें लाला से इतना दूर नहीं जाऊंगा, इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तुम्हारा साया भी ना देख पाए। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि मैं लाला को आबान की जिंदगी से निकाल दूं। शाह सारी रात की बालकनी में खड़ा यही सोचता रहा कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसकी आबान लाला को भूल जाए, ना सिर्फ उसे और उसे चाहने लगे। सिर्फ रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। आराध्या गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। फोन की आवाज से आराध्या की आंख खुल गई। वो परेशान हो गई कि इस वक्त उसे किसका फोन आ सकता है, और वैसे भी हमजा और शाह भाई के अलावा उसका नंबर किसी के पास नहीं, तो इस वक्त उसे कौन फोन कर सकता है? हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर। और हमजा की नींद खराब होने के डर से उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? कैसी हो रिमशा? इंतहाई खूबसूरत लेकिन शातराना आवाज उसके कान में गूंजी। आराध्या के हाथ पैर कांपे स्टर से के फोन बंद करके दूर फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन लोगों के पास मेरा नंबर कैसे आया? इन लोगों ने मेरा नंबर हासिल कर लिया, इसका मतलब कि वो बहुत जल्द ही मुझ तक पहुंच जाएंगे। आराध्या का सारा जिस्म कांपने लगा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझ पर रहम फरमा, मुझे इस अजाब से बचा ले। अब नींद आराध्या की आंखों से बहुत दूर हो चुकी थी। आज उसे याद आया कि उसके बचपन वो 7 साल की थी जब एक दिन उसका बाप कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसका सुतेला बाप जवारी और शराबी था। अभी उनकी शादी को मुश्किल से चंद साल ही गुजरे थे जब उसके सुतेले बाप ने
अपनी हकीकत दिखाते हुए उसकी माँ को पैसे के लालच में बेच दिया, जिसके बाद उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। उसके सौतेले बाप ने उसकी माँ को बदकिरदार करार दिया। सौतेले बाप ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और जिस दिन वो 18 साल की हुई उसे एक कोठे पर बेच आया। लेकिन आराध्या इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसे अपने सौतेले बाप से नफरत थी। वो जो सिर्फ कहने को बाप था, उसे 10 लाख की रकम में बेचकर हमेशा के लिए चला गया। जिस कोठे पर उसे बेचा गया था वहां औरतों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करवाई जाती थी। वहां कोई भी मर्द उनमें से किसी भी औरत के साथ निकाह करके अपने साथ लेकर जा सकता था। आगे उसकी मर्जी, वो जिसे इज्जत की जिंदगी दे या फिर घर की नौकरानी ही क्यों न बना के रखे। लेकिन जो लड़की ये गंद और घटिया काम नहीं करना चाहती थी, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती थी। लेकिन जो शख्स उसके साथ निकाह करके ले जाता, उसे अपनी मर्जी की रकम दी जाती, उससे अपनी मर्जी की रकम ली जाती और जब उस लड़की से दिल भर जाए तो उसे वापस उसी कोठे पर छोड़ जाता। कैसी अजीब लोग थे ये, जो निकाह जैसे बंधन का मजाक बनाते थे। ऐसी लड़कियां जो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती, उन्हें निकाह का लालच देकर यहाँ से ले जाया जाता और चंद एक महीना गुजारने के बाद फिर उसी जगह लाकर फेंक दिया जाता और तब उन लड़कियों का इज्जत की जिंदगी गुजारने का और निकाह का भूत सर से उतर जाता। सुफियान मलिक भी उन्हीं में से एक था जो आराध्या से निकाह का उम्मीदवार था। लेकिन आराध्या अपनी इज्जत नफ्स को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पाई और निकाह से एक रात पहले इस तोखले निकाह से भाग गई और इस पाक बंधन का मजाक नहीं बना सकती थी। कैसा माशरा है हमारा, जहाँ हर चीज का मजाक बना दिया गया है। निकाह अल्लाह के सबसे ज्यादा पसंदीदा कामों में से एक है, लेकिन हमारे माशरे में इस रिश्ते को भी सिर्फ नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से भागकर आराध्या रेलवे स्टेशन की एक ट्रेन में छुपी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उस ट्रेन में ना ढूंढ पाए। ऐसे आराध्या कराची आ पहुंची। ना रहने की कोई जगह थी और ना ही खाने का कुछ। आराध्या के पास कोई रकम मौजूद ना थी सिवाय अपने कानों में पड़ी अपनी माँ की बालियों के अलावा, जिसे उसने कोड़ियों के दाम बेचा। उसका इरादा किसी तरीके से पाकिस्तान से निकलने का था। वो कैसे भी यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसके पास रकम होना जरूरी थी। इसलिए उसने जॉब करने का फैसला किया। एक जवान लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी, जाने कितनी रातें कराची की सड़कों पर गुजार रही थी। वो बचपन से ही अपने इर्द गिर्द अच्छी और गंदी नजरें देख रही थी। उसे हर नजर की पहचान थी। वो जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं है, ना ही तजर्बा और ना ही अच्छी डिग्री। उसे कोई बहुत अच्छी नौकरी चाहिए भी नहीं थी। उसे तो सिर्फ किसी तरह पाकिस्तान से निकलना था। वो हर रोज जॉब ढूंढती, लेकिन शायद इस तरह की लड़कियों की कोई नौकरी भी नहीं देता। उसने कोई बुरी नौकरी ढूंढने की कोशिश ना की। उसे तो कोई छोटी सी नौकरी चाहिए थी, शायद उसके नसीब में वो भी ना थी। उसके पास जितनी रकम थी वो सब खत्म हो चुकी थी। उसे कराची आए 13वां दिन था। आज फिर वो जॉब ढूंढने जा रही थी जब सड़क पर उसे एक आदमी से टकराया और उसके हाथ में कोई भारी सी चीज थी जो उसके बाजू पर बहुत जोर से लगी। सॉरी, वो आदमी माजरत करके आगे बढ़ गया, लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर आराध्या देख चुकी थी। एक खौफ की लहर उसके अंदर उठी जबकि वो आदमी आगे बढ़ चुका था। वो आगे बढ़ रही थी जब उसे अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी रिवॉल्वर से किसी आदमी को सबकी नजरों से बचाकर निशाना बना रहा था। उसका मतलब था कि वो आदमी कोई कातिल है और यहाँ किसी को मारना चाहता है। खौफ के मारे आराध्या के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी नजर सामने गाड़ी में बैठे उस शख्स पर पड़ी जिस शख्स को वो मारना चाहता था। गाड़ी में एक मगरूर सा शहजादा बड़ी शान से बैठा अपने फोन पर मसरूफ ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर। या अल्लाह खैर, आराध्या के अंदर इंसानियत जागी। उसने अपना खौफ एक तरफ रखा और ट्रैफिक की गाड़ियों से निकलते हुए उस गाड़ी की तरफ भागी। वो तेजी से उस गाड़ी की तरफ आई। सुने भाई, वो आदमी आपको मारना। वो जैसे ही शाह की गाड़ी के पास पहुंची, एक गोली ने उसकी बाजू छील दी। शाह तेजी से बाहर निकला और उसे थाम लिया।